सर्कल चैप्टर का नेम है। पहला जी इंट्रो है वो आपने 9th क्लास के 8th क्लास के पिछली क्लासेस की हुई है। फिर भी एक बार आप सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। सब तो पहले अगर थोड़े तो कोई पूछते भी सर्कल की होंगे, सर्कल की होंगे तुम बोलना गोला, ठीक है। सर्कल की होंगे कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, उन्ना सारी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन्ना सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो, जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा की होंदा है सेम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦੋਸ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ whose distance from a fixed point is always same, like as ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਬਜੀ ਰੈਂਡਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਜੋ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ, जो फिगर थोड़े को बन के आऊगी वो चेक कर लो की बनूगी सर्कल, की बन जूगी सर्कल। तो सर्कल की होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always same। कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन्ना दा डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तो हमेशा की होता है सेम, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उस फिक्स्ड पॉइंट में की बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। समझते हैं कि अगर थोड़ा कोई डेफिनेशन पूछता है डिफाइन सर्कल, डिफाइन सेंटर, डिफाइन रेडियस, तो उसे की बोलोगे कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always same, and that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed distance is known as the radius of the circle। तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ radius of the circle, and the double of radius is known as the diameter of the circle। ਤੇ ਜੇ radius ਦਾ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ diameter। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ collection of all those points whose distance from a fixed point is always same, and that fixed point is known as the center of the circle, and that fixed distance is known as the radius of the circle, and double of the radius is known as the diameter and touch। इस तरह सर्कल हो चुका है, सेंटर हो चुका है, रेडियस हो चुका है, डायमीटर हो चुका है। उस तरह any line segment joining any 2 point on the circle, any line segment joining any 2 point on the circle is known as the ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ chord। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ चोड़ नहीं बोलना, the line segment joining any 2 point on the circle, सर्कल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 points ਨੂੰ, सर्कल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 points ਨੂੰ join ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ line segment ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ chord। ਧਿਆਨ ਦਿਓ line segment ਬੋਲਿਆ line ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, there is very large difference between line and line segment। लाइन सेगमेंट दे दो एंड पॉइंट होंगे हैं, लेकिन लाइन दा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अगर मैं उत्थे लाइन बोलदा, अगर उत्थे मैं लाइन बोलदा ना किसी दो पॉइंट्स ऑफ गुजरने वाली लाइन, तो डेफिनेशन बन जूगी सीकेंट दी। ओके दी डेफिनेशन बन जूगी सीकेंट दी, क्योंकि अगर सर्कल तो अगर मैं कोई लाइन गुजार रहा जी दो पॉइंट तक टच कर रही है उसको की बोला जाता है सीकेंट। पूरे लाइन नहीं है ये लाइन सेगमेंट है, ये है लाइन सेगमेंट। बहुत ग्रेटर डिफरेंस है लाइन ते लाइन सेगमेंट च। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट के होंगे दोनों एंड पॉइंट होंगे। समझते हैं इसके बारे में बच्चों को डिस्कस करांगे। पहले बस तक आप की काम कर चुके हैं, सर्कल कर चुके, सेंटर कर चुके, रेडियस कर चुके, डायमीटर कर चुके ते कोड कर चुके। कोड क्या है एनी लाइन सेगमेंट joining any 2 point on the circle is known as the chord। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਲ। सर्कल दी ओ कोड जी सर्कल दे सेंटर चो पास करती है उसनू की बोला जाता है डायमीटर। समझ सकते हर पॉइंट
हर चीज बिल्कुल क्लियर हो चली है। अज आप सर्कल बारे सर्कल के परिवार बारे सारा कुछ करना है चंगी तरह समझ चली कि सर्कल की होंगे सेंटर की होंगे रेडियस की होती है डायमीटर की होंगे हूँ कोड की होती है समझ आ गई। कोड की है द लाइन सेगमेंट joining any 2 point on the circle is known as the chord. Diameter is also a chord, moreover it's a longest chord समझ चली ये सब तो बड़ी कोड होती है। उस तो बाद any portion of the circle is known as the arc। सर्कल ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ सर्कल ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਰਕ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਆਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਕ ਸਮਝ ਚਲੀ। moreover when the end point of arc are the end point of the diameter then it will be semicircle। मैं की बोलिया हुन ए भी आर्क है ये पूरी भी आर्क है हुन देखो ये भी आर्क है जदों आर्क दे एंड पॉइंट्स डायमीटर दे एंड पॉइंट्स बन जान ता ये जिहड़ी आर्क बन गई चेक कर लो की बन गई सेमी सर्कल बन गई सर्कल दा हाफ बन गई जदों आर्क दे एंड पॉइंट इस आर्क दे जो एंड पॉइंट है वो डायमीटर दे एंड पॉइंट है तो ये जो आर्क है वो की बन चुकी है सेमी सर्कल। ये सारी चीज़ां 9th क्लास च सी पर थोड़ा 10th च भी इन्ना बारे सब कुछ पता होना चाहिए समझ सकते हो ना उस तक कोड उस तो बाद उस तो हुन मैं कोड दा बनाती कोड दा बन गई हुन एक कोड ते आर्क दे विचले रीजन नु की बोला जाता है सेगमेंट की बोला जाता है सेगमेंट। तो कुछ ना कुछ बात कोड ते आर्क दे विचला रीजन था ए वाला भी है ए वाला भी रीजन है ए भी रीजन है कोड ए भी कोड है ते ए भी आर्क है। अगर मैं डेफिनेशन दे रहा द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क the region between chord and arc is known as the segment। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ए भी है ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ए भी है ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ the region between ਉਹ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦਾ greater arc ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ the region between chord and major arc is known as the major segment। भैया हाँ जी जेड़ा सेमी सर्कल ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ सेगमेंट सेमी सर्कल ਹੁੰਦਾ हो सेगमेंट हाँ जी बिल्कुल ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦਾ जो ये है हाँ दोनों बराबर होंगे ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਆਰਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਮਝੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ सर्कल कर लिया collection of all those points whose distance from a fixed point is always same is known as the circle and that fixed point is known as the center of the circle and that fixed distance is known as the radius of the circle and double of the radius is known as the diameter of the circle. Any line segment joining any 2 points of the circle is known as the chord. Diameter is also a chord, moreover it is a largest chord. Any question? The region between the chord and arc is known as the segment. The region between the chord and major arc is known as the major segment. The region between the chord and minor arc is known as the minor segment. Arc की होती है any portion of the circle is known as the arc. When the end point of the arc or the end point of the diameter it forms semicircle. ਜਦੋਂ ਆਰਕ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਡ से दोनों साइड सेगमेंट बनते हैं मेजर माइनर ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ सर्कल collection of all those points whose distance from a fixed point is always same all सारे points की collection जिनका दा distance किसी के fixed point तो हमेशा ही चलता है same।
इन्ना सारे नाल पहचान होगी। हज तक आप सर्कल दे चाचे मामे फुफा बुआ उठ गए अजे दूर रिश्तेदारी ते जाना बाकी एंड की गल समझ आ गई। उस तो बाद एक टर्म होंदी है कह सकते हो सैक्टर, एक टर्म है सैक्टर। हुन सैक्टर लाइक एस A2 रेडियस A2 radius. The region between the area between the region between two radii, two radius and an arc is known as the sector. Two radii ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟੂ ਰੇਡੀਆਈ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी हाँ वो भी सेक्टर है ते मोर ओवर ए की होगा अपना मेजर सेक्टर ते ए की होगा अपना माइनर सेक्टर। अगर तुम प्रॉपर डेफिनेशन दे होगे अगर थोड़ी तो कोई पूछवा सेक्टर की होता है तो तुम की बोलोगे द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क इज नोन एज द सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर बोलिया द रीजन बिटवीन टू रेडियाई या रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड वन माइनर आर्क, टू रेडियस ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਰੇਡੀਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਪਥ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ सर्कल च एक लाइन पास करनी है कई तरीके मैं लाइन उरे भी पास कर सकता जे लाइन बार पास करूंगा तो इनु की बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नाम दे कुछ रहा है ओ लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी बात खत्म हो सकता है वो बीचों बीच चलती जा रही है की बोलेंगे नो इंटरसेक्टिंग लाइन। अरे नहीं की बोलेंगे सीकेंट दस से ना पहला इनु की बोलेंगे अपन सीकेंट की बोलेंगे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੱਸਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ the line which does not meet circle at any point is known as the non intersecting line। definition अपनी मर्जी तो दस the line which cut the circle at two distinct point is known as the secant। the line which cut the circle at one point is known as the tangent and that point is known as the point of contact। इनको की बोलेंगे point of contact। और तक समझ सकते पहला ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ कि अगर कोई लाइन सर्कल ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਅਗਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਅਗਰ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਐਨੀ ਟੱਚ ए सिर्फ भैया सिंगल इंटरसेक्टिंग सिंगल कॉन्टैक्ट जी इन्हें के बाद जस्ट जितनी कांटेक्ट करके बात बस जस्ट कांटेक्ट उस तो बात ऐसा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? सर्कल देते अगर मैं एक पॉइंट ले रहा एक पॉइंट तो सिर्फ एक ही टेंजेंट पार हो सकते जे कहोगे ना जी ये तो खासी सारी हो जानी नहीं ये तो आप जब से बिल्कुल प्रैक्टिस में देखोगे ना ये अपने यदि विड्थ वुड्थ करके ता दिक्कत आ रही है थिकनेस करके दिक्कत आ रही है लेकिन ये एक पॉइंट ते सिर्फ एक ही टेंजेंट बनती है
जे मैं सर्कल दे उत्ते कोई एक पॉइंट लेना, सर्कल दे उत्ते कोई एक पॉइंट लेना, उसको सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। अगर सर्कल दे बाहर कोई पॉइंट लेना तब उर्द कितनी टेंजेंट पास कर सकते? अगर मैं कोई पॉइंट बाहर लेना तो उसको कितनी टेंजेंट पार हो गया? कितनी हो गया? अगर मैं पॉइंट अंदर लेना तो इस पॉइंट से पार होना नहीं कितनी टेंजेंट? जीरो। टेंजेंट किम पार करोगे? जे चाहे तक के ना करोगे जी असि ऐ गुजार दांगे, ये टेंजेंट थोड़ा है। टेंजेंट तो होती है जो बाहर तो टच करके जावे, है ना? तो ये टेंजेंट नहीं कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उत्थे तुसी टू लाइंस पार कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट सर्कल दे उत्ते है तो एक टेंजेंट पार कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट सर्कल दे अंदर है उसको तुसी एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। एनी डाउट? देखो 10.1 और मैं इन द टेंजेंट at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? the tangent at any point of the circle, मान लो सर्कल है, सर्कल है, tangent at any point on the circle, सर्कल दे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा, टेंजेंट बना रहा अगर मैं सर्कल दे किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट बना रहा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल दे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट बना रहा इज वो की होगी? परपेंडिकुलर होगी किसी रेडियस दे, किदे परपेंडिकुलर होगी? रेडियस दे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किहड़ा होंदा है? मतलब पूरे एक ही है, रेडियस नाल की होगी परपेंडिकुलर होगी, एक शो करना है। तो आप इस स्टेटमेंट समझो कि कहना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल दे किसी भी पॉइंट ते तुसी अगर टेंजेंट बना रहे हो तो की होगी? जेडी टेंजेंट होगी वो की होगी? परपेंडिकुलर होगी। कितना परपेंडिकुलर होगी? रेडियस नाल परपेंडिकुलर होगी। हुन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ रेडियस ਤਾਂ मैं काफी मतलब बना सकदा, कितनी होगी? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जितने रेडियस ते टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ते मिल रहे ने पूरे की होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये मैंने की करना है शो करना। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या है? बस अपने शो करना है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस ना एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होता है परपेंडिकुलर। प्रूफ बहुत सस्ता क्या मतलब? देख पहला प्री प्लानिंग सुनो भी की। मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट, इस पॉइंट तो इस लाइन उत्ते मैं काफी लाइनां ड्रॉ कर ली, कई तरीके नाल लाइन ड्रॉ कर सकदा, सीधी भी कर सकदा, किसी एक पॉइंट तो किसी एक लाइन उत्ते मैं इनफाइनाइट मेथड नाल लाइन ड्रॉ कर सकदा, है ना? हुण मैं दसो जिवें देखो ओ ए बी सी डी ई, इन्ना सारी लाइन्स चो सब तो छोटेस्ट लाइन केड़ी होगी? ओसी। ओसी होगी। तो किसी साइंस में कितना हैगा कि जो परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर ਹੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਛੋਟਾ ਹੋਗਾ। मतलब ਦਿਮਾਗ ਮਾ ਹੋਗਾ मैंने ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? परपेंडिकुलर करना सी। अगर मैं इस ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर शो करना, अगर मैं डीसी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ स्मॉलर दिखा ਦਾਂ ਤਾਂ मेरा काम हो जाऊगा। कांसेप्ट समझियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਮੈंने ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ परपेंडिकुलर लाइन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ, मैंने परपेंडिकुलर शो करना है कि क्यों ना मैं इस ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ स्मॉलर दिखा ਦਾਂ कि अगर मैं इस ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ स्मॉलर दिखा दूं तो परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगी, क्योंकि स्मॉलर ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जो परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परपेंडिकुलर मैंने शो करना ਸੀ, मतलब ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ स्मॉलर ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ? मैंने इसको सब तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ स्मॉलर ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ O P, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂ? पूरे भी कोई पॉइंट ले लाइक आर
पूरे पॉइंट ले लो कोई एस, पूरे कोई पॉइंट ले लो टी जी। ਹੁਣ ਧਿਆन दो, जो ओ क्या हुआ है वो ओ एस तो वड्डी होगी कि नहीं होगी? मुद्दे च गल है, ओ क्या हुआ ओ एस तो वड्डी होगी। अच्छा अच्छा बता देंगे बात तो। और मोर ओवर जो ओ एस है वो ओ पी के इक्वल है, क्योंकि ए भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ओ एस ओ पी इक्वल है, ओ एस की जगह पे ओ पी लिखता, क्यों? क्योंकि जो ओ एस ते ओ पी की ने रेडियस ने, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो OP की आ गई, स्मॉलर आ गई, O क्या तो उसी प्रकार जो OP है वो स्मॉलर आ जाएगी किस तो? OR तो। उसी प्रकार तुसी उन्हें कोई भी पॉइंट ले लो, OP की आ जाएगी सब तो स्मॉलर आ जाएगी। दोबारा सुनो पहला कांसेप्ट समझो। मैंने की शो करना सीगा, मैंने एक पॉइंट तो एक लाइन से काफी लाइन ड्रॉ कर सकता, एक पॉइंट तो एक लाइन से काफी सारी लाइन ड्रॉ कर सकता। अगर मैं थोड़े तो क्वेश्चन पूछा कि ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ उसने आंसर ਦਿੱਤਾ OC, क्योंकि वो किसी परपेंडिकुलर ਸੀ, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सब तो ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना सब तो छोटा होता है। कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर शो करना है, अगर मैं इसको सब तो स्मॉलेस्ट दिखा दा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर शो करना है, अगर मैं OC ਨੂੰ स्मॉलेस्ट दिखा दा तो अपना काम हो जाएगा। ਹੁਣ OC ਨੂੰ स्मॉलेस्ट दिखाना है मतलब कि पूरे OP ਨੂੰ स्मॉलेस्ट दिखाना है। OP ਨੂੰ स्मॉलेस्ट किਵੇਂ दिखाऊंगा? चेक करो, जो O क्या हुआ है वो OS तो ग्रेटर है, जो O क्या हुआ है वो OS तो ग्रेटर है, जो O क्या हुआ है वो OS तो ग्रेटर है। ਤੇ OS ਤਾਂ ਮੇਰੀ OP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ये OS ਤਾਂ ਮੇਰੀ OP ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, क्योंकि दोनों रेडियस है। ਤਾਂ O क्या होगी ग्रेटर होगी ना OP तो, मतलब OP छोटी होगी ना, OP छोटी होगी ना, उसी प्रकार जो OP है वो OR तो भी छोटी हो जाएगी। ओमी जो OP है कोई और पॉइंट दे दो, OP है वो OA तो भी छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार कोई B पॉइंट ले लो, जो OP है वो OB तो छोटी हो जाएगी। तो उन्हें जितने मर्जी पॉइंट ले चलो, OP सब तो की होगी छोटी होगी, OP सब तो की होगी छोटी होगी। तो OP की है इज स्मॉलेस्ट, OP इज स्मॉलेस्ट साइड, OP की सब तो छोटी साइड है। अगर OP सब तो छोटी साइड है मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर किसके? BA दे, जो OP और परपेंडिकुलर किसके? BA दे, मतलब जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट ते। तो हम एक कर लो दिमाग च क्यों पूरा सर्कल चैप्टर इसी दे इर्द गिर्द घुमूगा कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल दे सेंटर तो मतलब ये टेंजेंट है, जो रेडियस हुंदी है वो टेंजेंट की हुंदी है, परपेंडिकुलर हुंदी है। ये अपने तन मन दे विच बसा लो, बार-बार ये चीज आउगी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ परपेंडिकुलर क्यों ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਰਾ ਕੀਤੇ। आपने क्या ए वाली साइड सब तो छोटी है ते जिहड़ी छोटी हुंदी है वो किंदे परपेंडिकुलर हुंदी है, इस करके परपेंडिकुलर शो हो गया। ते जेड़ा मैं 2-4 मिनट इन्हां ते लाया 5-10 मिनट लाई है इस थ्योरम ते, थ्योरम सिर्फ एक लाइन दी सी कि अगर मैं इस नु परपेंडिकुलर शो करना है तो मैं इसनु स्मॉलेस्ट शो करूंगा। ते स्मॉलेस्ट ये ऑटोमेटिकली है ही है, क्योंकि ये इस साइड तो छोटी है, इस साइड तो छोटी है, इस साइड तो भी छोटी है, इस साइड तो छोटी है। तो ए वाली साइड सारी साइड्स तो छोटी है तो स्मॉलेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट है तो परपेंडिकुलर है, ये अपना शो करना है। Sometimes and touch.